Sir, I rise to present the budget statement for the year 2020-21, facing and combating the challenges posed by COVID, the epidemic that spread across international boundaries and eventually escalated into a global pandemic. مراد علی شاہ نے اپوزیشن کے شور شرابے میں 18.38 ارب خسارے کے ساتھ 1241.13 ارب کا بجٹ پیش کر دیا۔ غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 9,868 بلین روپے، ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 2,232.9 ارب روپے ہے۔ کیپٹل اخراجات کا تخمینہ 39.1 بلین رکھا گیا۔ پچھلے فائنینشیل ایئر میں 2019-20 کے ہمیں جدا ہو گئے، ان کا یاد کرنا بیک ٹو کال کیسے ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین کا شدید احتجاج، شور شرابہ۔ اپوزیشن اراکین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ سندھ کے بجٹ میں ٹڈی دل کے کنٹرول کے لیے 440 ملین روپے مختص، صحت کے شعبے میں 19 ارب اور شہری علاقوں میں چھوٹے کاروبار کے لیے 300 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کورونا اور ٹڈی دل جیسی مشکل صورتحال میں بجٹ پیش کیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے نئے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے۔ مشکل معاشی حالات میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ مشکل حالات کے باوجود کراچی کے لیے نئے ترقیاتی اسکیمیں رکھی گئی ہیں۔ تو آج باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے فیصلے کی توجہ سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔ وفاقی حکومت کو بڑا جھٹکا، اتحادی جماعت بی این پی مینگل وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو گئی۔ اختر مینگل کہتے ہیں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم اور صدر کے انتخاب پر حکومت کا ساتھ دیا، مگر وفاقی حکومت نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ جی ٹی وی 9 جون کو بی این پی کی علیحدگی کی خبر نشر کر چکا ہے۔ بلوچستان کی جو نا دیرین مسائل، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ریسٹ آف دی تھنگس کی خاطر 9 پوائنٹ ایجنڈے پہ پھر ایک اور ایم او یو سائن ہوا تھا۔ اس میں ڈیسیجن یہ تھی کہ اس پہ آپ عمل درآمد کروائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ 2.25 سال گزرنے کے بعد کسی ایک پوائنٹ پہ بھی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایم او یو پر دستخط کیے تھے۔ بی این پی کے سینیٹر جہاں زیب جمال الدین کی جی ٹی وی سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی سے کہا تھا اس پر عمل درآمد ہوگا تو ہم اتحادی ہوں گے، مگر 2 سال گزر گئے، ایک بھی پوائنٹ پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ بی این پی مینگل نے وزیر اعظم عمران خان پر عدم اعتماد کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں حد تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ارکان عمران صاحب کی حکومت پر عدم اعتماد کر چکے ہیں۔ وفاقی حکومت قومی اسمبلی میں 4 ووٹ سے محروم ہو گئی، سینٹ میں بھی 1 ووٹ کم ہو گیا۔ اختر مینگل کی ناراضگی کے بعد وفاقی حکومت کو بجٹ منظور کرانے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا الوداع۔ ماضی کے معروف ٹی وی کمپیئر طارق عزیز انتقال کر گئے۔ طارق عزیز نے پی ٹی وی کے نیلام گھر سے شہرت پائی۔ طارق عزیز نے کئی فلموں میں اداکاری کی، رکن قومی اسمبلی بھی رہے۔ مشکیزہ دھرا دوش پا اس بحر کرم نے رو کر یہ برادر سے کہا، شاہ امم نے بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے ہم نے، مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی، توڑو نہ ضعیفی میں کمر صفت نبی کی۔ طارق عزیز سب کو روتا چھوڑ گئے،
सियासत से लेकर शोबिस से वाबस्ता शख्सियात का तारिक अजीज के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर शख्सियात का इजहार अफसोस। अपने इस धरती को, इस जमीन को, पाकिस्तान को अपना वतन जिस तरह कहते थे, जिस तरह इसके लिए तड़पते थे, जिस तरह इसके लिए बात करते थे, ये हम यंगस्टर्स को जो हैं हमारे मुल्क के, उनको सीखना चाहिए, उनको देखना चाहिए। तारिक अजीज एक रोशन सितारा थे। सैयद नूर का खिराज अकीदत। पीटीवी के साबिक एमडी जहीर खान बोले, तारिक अजीज एक बहुत बड़ा अहद थे। फैसल काजी का कहना था, तारिक अजीज को भुलाया नहीं जा सकता। खुशबख्श शुजात ने कहा कि कंपेयरिंग करने के लिए मुनफरिद जुमलों का इस्तेमाल उनकी पहचान था। वजीर आजम इमरान खान से पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात। सिंध में तरक्याती कामों और इंतजामी इस्लाहात के लिए तजावीज़ पेश की गई। इमरान खान से कहा, माजी में इक़्तिदार में रहने वाले सियासी क़यादत ने अवामी खिदमत नहीं की। इमरान खान कराची यात्रा के बाद लाड़काना पहुँच गए। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं, कराची के मसाइल वजीर आजम इमरान खान के सामने रखे हैं। K4 सर्कुलर रेलवे के मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए। के इलेक्ट्रिक अलग ज्यादती कर रहा है। अब्बासी शहीद अस्पताल के लिए रकम नहीं रखी जाती। पाकिस्तान में कोरोना की हलाकत खेजी में तेजी से इजाफा। मुल्क भर में पहली बार कोरोना से रिकॉर्ड 136 हलाकतें। कोरोना से जान बहक अफराद की तादाद 2275 हो गई। 1,54,760 अफराद मुतासर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर 58,437 अफराद सेहतयाब। बहुत हो गई बेएहतियाती, अब करनी होगी पाबंदी। कराची के 3 अजला में लॉकडाउन करने की हिकमत अमली तैयार। जिला गरबी की 13 यूनियन काउंसिल में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। जिला शिरकी में 16 यूनियन काउंसिल्स में लॉकडाउन होगा। जिला कोरंगी की मुतादिद यूनियन काउंसिल्स में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म। लाहौर के 81 हॉटस्पॉट इलाके सील कर दिए गए। सील किए गए इलाकों में DHA, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, कैंट, कैलरी ग्राउंड, कैनाल व्यू शामिल है। जौहर टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स बंद। 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कोरोना के बायस लाहौर में सील किए गए इलाकों की तमाम मार्केट्स और दफातर बंद रहेंगे। इज्तिमात पर पाबंदी होगी। पेट्रोल पंप समेत दुकानों को सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलने की इजाजत होगी। मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। एलामिया जारी। इस्लामाबाद के मजीद 4 सेक्टर्स आज रात 12 बजे के बाद सील कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक लोई भीर, गौरी टाउन, G7 के इलाकों को ताहाल सील नहीं किया जा रहा है। आजाद कश्मीर काबीना के 2 मजीद अरकान कोरोना का शिकार हो गए। सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक और वजीर इत्तलात मुश्ताक अहमद मिन्हास का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 15 दिन की तौसी। नोटिफिकेशन जारी। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मजहबी, सियासी और दीगर इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। तफरीही मकामात, सिनेमा घर, खेलों के मैदान और शादी हॉल्स पर पाबंदी बरकरार। वजीर दाखिला की सरबराही में ईद उल अजहा पर कुर्बानी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास। वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा, कुर्बानी के मजहबी फरीजे की अदायगी के लिए हुकूमत हर मुमकिन सहूलत को यकीनी बनाएगी। इस हवाले से वजारत सेहत की गाइडलाइंस के मुताबिक इंतजामात करना जरूरी करार। मुशीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। ECC ने मुख्तलिफ इदारों के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। कोरोना से निमटने के लिए चीन से 7 अरब 84 करोड़ का सामान खरीदने की भी मंजूरी दी गई।
लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, नौकरियां देना तो दूर की बात, जो बरसरे रोजगार थे उन्हें भी बेरोजगार कर दिया। हुकूमत लॉकडाउन पर भी कंफ्यूज्ड है। सारी सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत नहीं तो और कौन है? अहलिया के मौक़िफ़ के बाद मैं अपनी दरख्वास्त पर मुकदमा लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा का बयान। कहा, अदालत उनकी अहलिया के बयान के बाद उनसे सवालात कर सकती है। शहजाद अकबर, फरूख नसीम और साबिक अटॉर्नी जनरल ने एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दूसरे को झूठा करार दिया। जज साहब, हम आपका एहतराम करते हैं, आप तशरीफ रखें। जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। दुनिया भर में कोरोना से 4,46,135 अमवात, 82 लाख से ज्यादा अफराद में कोरोना की तशखीस, 4,32,000 से ज्यादा मौलिक वबा से जान भी छुड़ा चुके। कराची वाले कोरोना से बचे या स्ट्रीट क्रिमिनल से? शहर में डाकुओं और राहजनों का राज। पुलिस और रेंजर्स की चेकिंग और पेट्रोलिंग के बावजूद शहरी रोजाना लुट रहे हैं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं। गुलिस्तान जौहर कराची में गाड़ियों का सामान चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म। मुलजिम गाड़ी से बैटरी निकालकर बासानी फरार। आए रोज चोरियों से इलाका मकीन शदीद परेशान। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं? हमें बताना होगा कि क्या हुआ। भारतीय फौजियों की चीन के हाथों हलाकत पर भारत में कांग्रेस और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी मोदी सरकार पर चढ़ दौड़े। अपने पैगाम में कहा, चीन ने कैसे उनकी जमीन पर कब्जा करके उन्हीं के फौजी मार दिए। राहुल गांधी के सवाल पर मोदी ने चुप साध ली। अफगान फौज और तालिबान के दरमियान झड़प में 17 अफगान फौजी मारे गए, 11 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। और प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 20 जून से शुरू होगा। मौसम का हाल बताने वालों की पेशगोई। प्री मानसून बारिशें शुमाली इलाकों में होंगी। मुल्क में 10% मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। गर्मी की लहर मजीद 3 दिन तक जारी रहेगी।